आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो मैं अपने लेक्चर फर्स्ट का पार्ट 3 जो है यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हमने थोड़ी सी बात की थी कि आपके पास जो है वाइट नॉइज क्या होता है, कोवेरियंस स्टेशनरी क्या होता है। तो जिन सीरीज में आपने देखा कि वो एक रैंडम पैटर्न ऐसे 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 चल रहा था, वो बेसिकली उसका मीन ओवर टाइम सेम रह रहा था। तो फिर आपने नॉन स्टेशनरी दो सीरीज देखी जो XT और YT मैंने आपको लास्ट टाइम जो है डिस्कस की एम्पिरिकल एनालिसिस में, जिसका डेटा भी आपको प्रोवाइड किया। तो वेरिएंस कांस्टेंट पे फर्दर हम डेलिब्रेट करेंगे, कोवेरियंसेस की बात करेंगे। व्हाइट नॉइज की हमने बात की कि व्हाइट नॉइज प्रोसेस जो है उसका मीन 0, स्टैंडर्ड वेरिएंस जो है कांस्टेंट और कोवेरियंस जो है अपनी लैग वैल्यू से 0 होते हैं। तो statistical review, you all know the definition of variance, covariance, correlation. I don't go in that detail. Moving average model, that is yt is equal to epsilon t plus beta 1 epsilon t minus 1. So is this process stationary? Yes, moving average process is always stationary because you see, if we take expectation of yt here, and expectation of epsilon t is 0, beta 1 is parameter, that's constant, its expectation is 0, so its mean will be 0. And if we take its variance, so if we take its variance, so its variance will be variance of yt will be equal to variance of epsilon t plus beta 1 epsilon t minus 1. So when we open this, variance of epsilon t plus beta 1 variance of epsilon t minus 1 plus covariance, but we know that covariance between epsilon t and epsilon t minus 1 is 0, so we'll have only variance of epsilon t plus beta 1 square, because it's a parameter, variance of epsilon t minus 1. So this is sigma square, this is sigma square, this will be sigma square plus beta 1 square sigma square. This variance is 0. If we take its covariance, that's also come out to be 0, time independent. So we say that moving average process is always stationary. If you will see covariance between yt and yt minus 1, it will be equal to beta 1. Rest of the covariances, covariance of yt and yt minus 2 will be 0. Covariance of yt minus 3 will be equal to 0. So moving average process has correlation only of order 1, and it will become 0 after that. You can calculate it, you can verify it. Okay. If we go to, you see here we have D1, D2, D3, D4. If you have quarterly data like we discussed quarterly GDP or quarterly interest rate or quarterly money supply, so you need to introduce seasonal dummies. If you have intercept here, you introduce 3 dummies instead of 4. तो यहाँ पे हमारे पास intercept नहीं है, so we introduce 4 dummies. In this case we have also included time trend as well. This trend is called deterministic trend because it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and if I say what will be the value after 10, you know it's 11. So this is deterministic trend. You know the values of these trends in advance. So stochastic means any process which is random over time. Now we go for autoregressive process. So in previous one we have yt equal to epsilon t plus beta 1 epsilon t minus 1. Here we have a1 yt minus 1 plus epsilon t. It means yt is regressed on its own past value. So we have here lag 1, we call it AR1. Here we have yt regressed on yt minus 1, yt minus 2. This is called general autoregressive process. This one here you have trend, b is coefficient, t is your time trend, yt minus 1 is lag, a1. So here again we say this is AR1 as well as time trend model.
Similarly, if we go to the next one, when we'll do this univariate analysis, we always have 4 stages. First is identification. That identification comes from your plotting of data. Plotting of data is very important. I'll deliberate more on it. Checking missing values. Plotting will help you in finding out, are there missing values, are there any outliers, is there nonlinear trend, is there some other problems in data. So we must have no trend if process is to be stationary. So how do we make that differencing? And sometimes we take log transformation. तो फिर उसके बाद हम एक टेंटेटिव मॉडल आइडेंटिफाई कर लेते हैं. वो अभी बात होगी कि किस तरह से हम ये चेक करते हैं कि AR1 है, AR2 है, MA1 है, MA2 है, ARMA11 है, ARIMA111 है. तो ये सारी डिस्कशन होगी. Look at this series. This is a non-stationary series. Why this is non-stationary series? As I mentioned in my previous video, here mean is around 0. Here mean is changing. Here again mean is different. So mean is changing over time. So you see these black spikes are called autocorrelations, and blue spikes are called partial autocorrelation. This first one is at lag 0, and we know at lag 0 correlation of YT with YT is always 1. Here you see at lag 1, lag 2, lag 3, lag 4, and so many lags. These black spikes are not these two lines. Within these two lines, these two lines are called plus minus 2 standard errors. So it means these spikes are significant, which means that YT depends on its lagged values. Even if 20 years have passed, even if you have 20 months have passed, so it has long dependence over time. So if these black spikes don't decay, autocorrelation function does not decay, it means कि आपकी सीरीज की पास्ट जो है वो बहुत सारे लैग्स पे डिपेंडेंस है, विच मीन्स इट्स अ लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस. लॉन्ग मेमोरी प्रोसेस जो है वो जो है नॉन स्टेशनरी होता है. तो हम देखेंगे कि जी जैसे कल मैंने आपको EX और EY वाली सीरीज दी थी, अगर उसका आप प्लॉट बनाएंगे तो वो आपको जैसे ये ब्लू नीचे वाली नजर आ रही है इस तरह से नजर आएगा, विच मीन सीरीज हैज नो मेमोरी, ऑल कोरिलेशंस आर विद इट्स पास्ट वैल्यूज आर 0. तो we'll डिस्कस इट. तो यू सी ये चारों सीरीज जो आपको चारों पैनल्स नजर आ रहे हैं ये आपके पास नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि हर एक में मीन वेरिएंस जो है वो चेंज हो रहा है, मीन चेंज हो रहा है. यहां पे देखिए दिस इज कॉल्ड, वो भी नॉन स्टेशनरी सीरीज थी, दीज आर कॉल्ड नॉन स्टेशनरी. बट यहां पे आपको ट्रेंड का नहीं पता, सीरीज यहां से ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, इधर चली जाए, इस तरफ चली जाए, इधर चली जाए, नेक्स्ट ऐसे चली जाए. तो ऐसी सीरीज स्टोकेस्टिकली नॉन स्टेशनरी है. हियर यू हैव ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज कि ये थोड़ी सी फ्लक्चुएशन तो वो व्हाइट नॉइज, वो जो रैंडम ET ऐड करते हैं उसकी वजह से है, बट मेन जो है वो टाइम ट्रेंड है जो कि यहां मैटर कर रहा है. तो ये आपको जो है वो दिस इज कॉल्ड ट्रेंड स्टेशनरी सीरीज. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था कि डी ट्रेंडिंग और डिफरेंसिंग, इस केस में हम डी ट्रेंडिंग करेंगे और इस केस में हम जो है डिफरेंसिंग करेंगे. आई मीन कि इस सीरीज को स्टेशनरी बनाने के लिए ज्यादातर केसेस में इस तरह की सीरीज के लिए हम फर्स्ट डिफरेंस लेंगे, और इस तरह की सीरीज में हम जो है वो YT को बीटा T पे रिग्रेस करेंगे और फिर रेजिडुअल्स ले लेंगे. अब देखिए तो पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन, तो एक कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है. पार्शियल कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन ये होता है कि अगर आप दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन देखें और तीसरा वेरिएबल जो है उसका इंपैक्ट उससे एलिमिनेट कर दिया जाए. इस पे मैं एक ग्रोथ पे अलग से जो है वो R के थ्रू एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसके थ्रू देखेंगे तो आपको पार्शियल की कॉन्सेप्ट समझ आएगी, जो हम रूटीन में भी इकोनोमेट्रिक मॉडल में कहते हैं कि दिस इज इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन मनी डिमांड होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ इनकम कांस्टेंट. इसका मतलब क्या होता है? Unfortunately, we don't understand what's its exact meaning. What does it mean? We'll discuss that. तो partial autocorrelation means कि YT minus 1 के साथ correlated है.
इस केस में तो अगर yt और yt-2 की कोरिलेशन यहां पे आप अगर देखेंगे तो वो नहीं होनी चाहिए। इस केस में वो अपनी दो लेग्स के साथ डिपेंडेंट है, तो यहां पे जब yt और yt-1 की कोरिलेशन देखें तो इट मींस उसमें yt-2 का कोई इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। यही बात अभी एक सेकंड पहले मैं कह रहा था कि आई शैल एक्सप्लेन कि yt और yt-1 का कोरिलेशन होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ yt-2 कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो ये मैं आपको एम्पिरिकली उस ग्रोथ वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप जब भी वो जो है इंटरप्रेटिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स इन मल्टीपल रिग्रेशन, तो वो आपने जो है वो वीडियो देख लेनी है। तो यहाँ पे A1 जो है ये पार्शियल कोरिलेशन, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये A1 जो है ये कोरिलेशन है बिटवीन yt एंड yt-1 होल्डिंग द इफेक्ट ऑफ yt-2 कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता तो वी मिस द पॉइंट। तो ये A1 A2 ये पार्शियल कोरिलेशन है। तो अब ये देखिए सीरीज, दिस सीरीज इज स्टेशनरी, दिस वन सीम्स स्टेशनरी, दिस वन सीम्स स्टेशनरी, दिस वन सीम्स, तो ये बेसिकली व्हाइट नॉइज सीरीज है। व्हाइट नॉइज जो है वो ऑलवेज स्टेशनरी है। पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ MA1, तो आप अगर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो यहां पे देखिए तो yt जो है इसकी पार्शियल कोरिलेशन होगी yt-1 के साथ भी, yt-2 के साथ भी, yt-3 के साथ भी, सो ऑन। तो ये बेसिकली एक MA प्रोसेस जो है ये AR इंफिनिटी बन गया है। तो ये बेसिकली हम जो है वो MA मॉडल को, मूविंग एवरेज मॉडल को AR में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और AR मॉडल को मूविंग एवरेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डुअलिटी, DUALITY, दिस इज कॉल्ड डुअलिटी। तो ये आपको डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। यहां आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड जो है मैं मेंशन करने जा रहा हूं, एक है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन और एक है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। अगर प्रोसेस होगा AR1 तो उसका ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या करेगा, ज्योमेट्रिक डिके करेगा, और उसका पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होगा, वो एट लेग P कट ऑफ कर जाएगा। इस बात को मैं एम्पिरिकली एक्सप्लेन करूंगा। मूविंग एवरेज देखिए, ये देखिए दोनों एक दूसरे का रिवर्स हैं। अगर प्रोसेस MA1 होगा तो उसका पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ज्योमेट्रिक डिके करेगा। ज्योमेट्रिक डिके से मुराद क्या थी कि अभी आपने वो ब्लैक्स वाली स्पाइक्स देखी थी ऐसे लंबी लंबी ऊंची ऊंची, तो वो डिके नहीं कर रही थी, 20 लेग भी गुजर गए थे। बट ज्योमेट्रिक डिके का मतलब ये है कि अगर ये मेरे पास पहली पार्शियल ऑटो कोरिलेशन हाई है, दूसरी लो, तीसरी फौरी तौर पे, तो इमीडिएटली ये अपनी जो है ना ये +-2 स्टैंडर्ड एरर्स रेंज के दरमियान आते हैं। तो ये बेसिकली ज्योमेट्रिक डिके है। एट लेग P का क्या मतलब है कि अगर आपके पास जो है वो फर्ज करें AR1 प्रोसेस है, ARP लेट्स से ARP जो है वो AR1 है, तो इसका मतलब है फर्स्ट लेग पे ये स्पाइक होगी, उसके बाद ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगी। तो इसका मतलब होता है कि ये कट ऑफ एट लेग P हो गया। अगर 2 लेग्स पे कट होता तो ये हो जाता 3 लेग्स पे, तो ये वाली चीज हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड लेग P, चाहे वो इस फॉर्म में है चाहे इस फॉर्म में। इसको जरूर ब्राउज कीजिएगा, गूगल में ब्राउज कर लीजिएगा इस स्लाइड को। तो ये कि जी आपके पास जो है पार्शियल ऑटो कोरिलेशन फंक्शन फॉर AR MA मॉडल्स क्या होती हैं, तो आपको बहुत सारी जो है वो इस पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो प्लीज लिसन दैट, रीड दैट, यू विल गेट इट। सिग्निफिकेंस लेवल, तो एक था कि अभी आप मैंने ये बनाई है, तो ये तो एक इंडिविजुअल कोरिलेशन सिग्निफिकेंट बाई चांस भी हो सकती है 20 में से 95%, तो 5% बाई चांस हो सकती है, तो 20 का 5% 1 ऑब्जर्वेशन बनती है। तो ओवरऑल कोरिलेशन टेस्ट करने के लिए एक स्टेटिस्टिक्स डिजाइन की गई, दैट इज कॉल्ड बॉक्स जेनकिन, नॉट बॉक्स जेनकिन, दैट इज कॉल्ड जूंग बॉक्स स्टेटिस्टिक्स। तो वो ओवरऑल कोरिलेशन को टेस्ट करती है कि क्या ओवरऑल आपकी कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। लुक एट दिस, जो भी मैं बात कर रहा था अगेन आगे, कि यहां पे देखिए स्पाइक्स ज्योमेट्रिकली डिके नहीं कर रही, ये स्पाइक्स बहुत देर तक
जो है वो प्रोलॉन्ग करती हैं, जिसका मतलब है सीरीज की पास पे बहुत सीरियस डिपेंडेंस है। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो नॉन स्टेशनरी है, क्योंकि ये आपकी जो है वो इसका ACF जो है ये डिके नहीं करता। तो ACF का ज्योमेट्रिकली डिके होना और PACF अगर एक ब्लू स्पाइक के बाद 0 होता, तो ACF अगर ज्योमेट्रिक डिके होता तो हम कहते हैं ये AR1 मॉडल है, और अगर रिवर्स होगा तो हम कहेंगे ये जो है वो MA1 मॉडल है। लेट्स गो टू दिस। तो वी नीड टू प्लॉट डेटा। तो एक तो आपने जो ये प्लॉट किया तो यू गॉट एन आइडिया कि ये एक नॉन लीनियर ट्रेंड है, और ये यूके का GDP, US GDP है, ये एक नॉन लीनियर ट्रेंड है। तो नॉन लीनियरिटी नजर आ गई, कोई इन जनरल मिसिंग ऑब्जर्वेशंस नहीं है, और जो है वो ये आपकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड से जो डेविएशन है सीम्स परमानेंट, और स्केल भी साथ मेंशन किया हुआ है। तो कब हमने डिफरेंस लेना है, कब हमने सीरीज की लॉग ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, कब हमने उस पे बॉक्स कॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, तो ये वो चीजें हैं जिसको हम जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे अप्लाई करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर स्टोकेस्टिक नॉन स्टेशनरी सीरीज होगी तो डिफरेंस लेते हैं। लॉग लेने से क्या होता है, मेनी अ टाइम्स एक नॉन लीनियर मॉडल जो है लीनियर हो जाता है, हेट्रोस्केडास्टिसिटी की बजाय होमोस्केडास्टिसिटी हो जाती है, और अभी हमने ट्रेंड कंपोनेंट्स नहीं पढ़े, मल्टीप्लिकेटिव कंपोनेंट्स जो है एडिटिव कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्म सीरीज बॉक्स कॉक्स की बात होगी। तो अब ये देखिए पॉलिनोमियल है, अगर मैं इसका लॉग ले लूं तो ये मेरे पास फंक्शन जो है वो लीनियर फॉर्म में आ गया। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ मेनी कोएफिशिएंट्स, तो आपको पता है कि R² आपने पढ़ा हुआ है, बट R² इज नॉट अ गुड क्राइटेरिया फॉर मॉडल फिटिंग। तो वहां पे हमारे पास जो है वो कुछ और क्राइटेरियाज हैं, लाइक AIC, BIC। उससे पहले वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है। तो इन सैंपल वर्सेस आउट ऑफ सैंपल। इन सैंपल वो होता है कि फर्ज करें मेरे पास 1960 से लेके 2015 तक का डेटा है, और इसको मैं यूज करता हूं 2015 से 16 से लेके 2025 22 तक फोरकास्ट करने के लिए। तो ये पहले वाला जो डेटा होगा ये वाला, ये इन सैंपल है, और ये वाला मेरा डेटा जो है ये आउट ऑफ सैंपल होगा। आल्दो आउट ऑफ सैंपल होना ये चाहिए कि आज हम 2020 में बैठे हैं, तो हम 2020 में फोरकास्ट करें 2021 से 2025 तक के लिए, और फिर उसके बाद हम जब ये डेटा आ जाएगा फिर हमें पता चलेगा कि हमारा मॉडल सही था या नहीं था। तो ये आउट ऑफ सैंपल है, और ये up to this 1962, this one is called within sample. पेनल्टी टर्म अभी इसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए तो ये दो क्राइटेरिया हैं जो आपको जो है वो सिस्टम जब भी आप एस्टिमेट करेंगे तो ये कैलकुलेट होके आएंगे। तो जिसकी वैल्यू मॉडल में कम होगी हम कहेंगे कि उसका जो है वो मॉडल हमारा प्रेफरेबल है। आल्दो इस पे बहुत सारी डिबेट है, लेकिन एट द मोमेंट मैं आपसे जब फेस टू फेस मीटिंग होगी उसमें ये डिबेट्स करेंगे। एट द मोमेंट जस्ट मेरी इस बात को बस इतना लेना, इससे ज्यादा नहीं लेना कि AIC और BIC जिस मॉडल के लिए कम होंगी उस मॉडल को हम प्रेफर करेंगे। ये देखिए इसको जो ही हमने प्लॉट किया तो आपको एक सिंपली आउटलायर नजर आ गई। तो अभी आपके पास कोरोना वायरस आया, इस कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी जो है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज, पूरी की पूरी एयर इंडस्ट्री जो है, पूरी की पूरी ऑयल इंडस्ट्री, तो क्या जब वो आप उस टाइम पीरियड को लेंगे तो इट मे बी अ जेन्युइन आउटलायर। मेनी अ टाइम्स लोग जो है ना आउटलायर को जो है वो थ्रो आउट कर देते हैं। अगर तो वो कोई टाइपो एरर हो तो वी कैन ड्रॉप इट, अदरवाइज उसको ट्रीट करना होता है, उसके बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यू। तो ये आपको, लेकिन एट द मोमेंट हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं कि प्लॉटिंग से क्या होता है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, लीनियर है, नॉन लीनियर है, आपके पास जो है कोई आउटलायर तो नहीं है। ठीक है, तो क्या हमें आउटलायर ड्रॉप कर देनी चाहिए या इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने एक ग्रोथ वाला डेटा वीडियो अपलोड की जिसमें माल्टा को हम ड्रॉप कर देते हैं एंड देन वी री एस्टिमेट आवर मॉडल, क्योंकि वहां पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आउटलायर्स को अदरवाइज आपने प्रॉपर कंसिडरेशन देनी है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि स्टॉक मार्केट में जिस दिन क्रैश हो उस दिन को हम छोड़ दें और बाकी एनालिसिस करते रहें। अच्छा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है तो मैं ये 20 मिनट की वीडियो के बाद इससे अगले वाली वीडियो में नेक्स्ट टाइम अपलोड करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। और इसको जो है वो आपने थोड़ा सा ब्राउज कर लेना है। वॉल्टर एंडर्स सॉरी जो है वो इस वक्त
ओके, वॉल्टर एंडर्स की बुक अप्लाइड टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स के चैप्टर 2 की थोड़ी सी आपने ब्राउजिंग करनी है, रीडिंग करनी है, और उसकी एक्सरसाइजेस को मैं भी करूंगा, आपने भी करने की कोशिश करनी है। टेक केयर।